Hello students, good morning all of you. Students, your chapter 3, that is coordinate geometry, have been finished now, and this is time for starting our new chapter, chapter 4, whose name is linear equations in two variables. So student, before starting this chapter, I want to say something about, if you understand the chapter 2 polynomials, then this chapter will be easy for you. And if you don't study, or if you have not studied chapter 2 yet now, so this chapter will be a little bit tough. So before starting this chapter, I want to say something about the concept which is related to chapter 2 polynomials. So student, first of all I want to say that what is the linear polynomial? What is linear polynomial? So student, you are all know that what is polynomial. First of all, I am discussing about polynomial. Polynomial means an algebraic expression in which the variable does not occur in denominator, and the coefficient of the variable must be a real number, as well as the power or exponent of any variable must be a whole number. So this algebraic expression is known as polynomial. Okay, and I have also said that in polynomial chapter, that every polynomial, listen carefully, every polynomial is an algebraic expression, but every algebraic expression may or may not be a polynomial. बच्चों, सभी algebraic expression polynomial होते हैं. रिवर्स बोल दिया मैंने. सभी polynomial algebraic expression होते हैं, बट सभी algebraic expression polynomial हों ये कोई जरूरी नहीं है. हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ polynomial. What is types of polynomial? Types of polynomial will be classified on the two bases, that is on the basis of degree, and second one is on the basis of terms. Okay, so degree means if in any polynomial, if you try to say something about what is the types of polynomial on the basis of degree, then you have to observe only the highest degree of the variable of any polynomial. मीन्स बच्चों, आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट ये है कि आप उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, और उस पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री जो भी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका नेम लिखना होगा. जैसे फर्स्ट इसमें जो आपने पढ़ा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल. सेकेंड इज क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड इज, अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी उस वेरिएबल की, जब डिग्री क्या होगी 1 होगी तो लीनियर होगा, जब डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, जब डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक होगा, ऐसे डिग्री 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक होगा, है ना. अब क्वाड्रेटिक, एंड डिग्री 5 होगी तो बाई क्यूबिक होगी. इस तरह से नेम इसके क्लासिफाई किए गए हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. जैसे कि 1 टर्म है तो मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म्स है तो बायनोमियल, एंड 3 टर्म्स के लिए ट्राइनोमियल, है ना. एंड मोर देन 3 टर्म्स के लिए, मोर देन 3
मोर देन 3 टर्म्स के लिए हम बोलते हैं मल्टीनोमियल्स। ये सब आपने पढ़ा होगा, क्लास 7th 8th सभी में पढ़ाया जाता है, इवन 9th में भी टॉपिक दिया हुआ है। तो चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल में ये सभी आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ इस पॉलिनोमियल से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सो आई एम फोकसिंग ओनली the types of linear polynomial because this concept will be used in the chapter of this linear equation to variable, and you are all know about what is linear polynomial. Linear polynomial. So student, linear polynomial means a polynomial in which the variable the highest degree of the variable is 1, then this is called linear polynomial. For example, 2x plus 2, 3y minus 1 or 4z plus 7, etc. So student, here the highest degree of the variable is 1, so it is called linear polynomial. Okay, and if you want to try to write the general form of the linear polynomial, then this is ax plus b. Okay, and ax plus b is the general form of a linear polynomial. And if you try to write the linear equation, then first of all you are know about what is equation. Equation क्या होता है? What is equation? Equation means if a statement in which the both two sides, if any statement, if both sides are connected with equal sign, then this is called an equation. Like if you want to try to write linear equation, this is linear polynomial in one variable, because here a, b are real numbers and x does not equal to 0. So this is the example of, this is the general form of linear polynomial. बच्चों ये क्या है? एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि इस जनरल फॉर्म के आधार पर आप बहुत सारे लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, और इसी में अगर हम इक्वल के साइन लगा के 0 लिख दें इसी लीनियर पॉलिनोमियल में, अभी ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। अभी आपने इस लीनियर पॉलिनोमियल के आगे इक्वल साइन लगा दिया, उसके आगे 0 लिख दिया, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन बन गया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, बिकॉज इन दिस स्टेटमेंट हैज टू साइड मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड, and both the sides are connected with equal signs, so this is called an equation. And which type of equation? That is linear equation in one variable. Okay, so this is the general form also. This is general form of linear equation in one variable. And you have studied in previous class also that in this general form of linear equation in one variable, there are only and this linear equation in one variable has only unique solution. Only unique solution, or you may say that one and only one solution. बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हमेशा सिर्फ या तो यूनिक सोल्यूशन, यूनिक का मतलब होता है कि उसके जैसा कोई भी ना हो, एक पीस जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं यूनिक। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। तो हमेशा ये याद रखना है कि आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सिर्फ एक सोल्यूशन होते हैं। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कनेक्टेड विद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर दो वेरिएबल हो जाएगा। जैसे लीनियर
equation in one variable if an equation having two variables in which the highest degree of all the variables is always 1, then this equation is called linear equation in one वेरिएबल। ओके, यदि किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हो और उन सभी वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री हमेशा क्या हो, 1 हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, नाउ आई एम राइटिंग हियर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जनरल फॉर्म ऑफ linear equations to variables। General form of linear equations in two variables। जनरल फॉर्म समझ देना बच्चों आप, इसका मतलब कि इसके इस जनरल फॉर्म के आधार पर हम बहुत सारे लीनियर इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 is called the general form of linear equation in two variables। Okay, and where a, b and c are real numbers। बच्चों रियल नंबर क्या होता है आपको मालूम है चैप्टर 1 से, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। सो ए बी से आपका रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल का मतलब 7/2 और -1/7 एंड इरेशनल का मतलब √2, √3/2, √2 + 3, इस टाइप के जो है आपके रियल नंबर हो सकते हैं। एंड x and y does not equal to 0। यहाँ पे ये ध्यान देना है, x और y 0 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपने 0 कर दिया, जैसे मान लीजिए x 0 हो जाएगा तो a × 0 हो जाएगा, और y भी 0 हो जाएगा तो b × 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 0 यानी कि c बचेगा, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बट बिफोर moving our next concept, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot। Now students, our next topic is solution of linear equation in two variables। Solution of linear equation in two variables। So student, I have discussed
in previous segment that how many solution of linear equation in one variable. There is a unique solution in linear equation in one variable, or you may say that one and only one solution. But in linear equation in two variable have infinitely many solution. Why can I say that infinitely many solution? Because if I write any linear equation that 3x plus 2y plus 7 minus 1 is equal to 0, and if I put x is equal to 0, then y will be 2y minus 1, because this term is 0, that is y is equal to 1 by 2. If x is equal to 1, then 3 into 1 plus 2y minus 1 is equal to 0. 3 minus 1 is 2, that is 2 minus 2, then y is equal to minus 1. If x is equal to minus 1, then 3 into minus 1 plus 2y minus 1 is equal to 0. Then minus 3 and minus 1, that is minus 4, then 2y is equal to 4, then y is equal to 2. So student, look all these examples that for different value of x, there are different value of y is coming. Okay, so that's why we can say that there is no limit. There is no limit for solution of linear equation in two variable. बच्चों linear equation in two variable के इस infinitely many solution क्यों होते हैं? क्योंकि x जितनी बार भी आप x की वैल्यू रखते जाएंगे उतनी बार आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, और x की वैल्यू रखने या y की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी. तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार आप उसको रखेंगे, इनफाइनाइट टाइम्स रखेंगे, बहुत सारे नंबर आप रखते चले जाएंगे, तब तक आपको डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट सोल्यूशन मिलते जाएंगे. इसलिए हम कह सकते हैं इस आधार पर कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं. ओके, एंड अगर एग्जाम में भी आता है कि आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के आपको सोल्यूशन निकालने हैं, तो यहाँ पर भी 2 या 3 सोल्यूशन या मैक्सिमम 4 सोल्यूशन निकालने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं. इसलिए 2 या 4 सोल्यूशन निकालने के लिए कहा जाता है, और वो 2 या 4 सोल्यूशन सभी के अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि जब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा तो किसी का भी आंसर मैच नहीं होगा एक दूसरे से. लेकिन एक चीज इसमें जरूर आपको याद रखना है कि अगर आपने जो वैल्यू लिया है, जैसे x इक्वल टू 0 लिया है, तो 0 के लिए y की वैल्यू 1/2 ही होगी. मतलब इस इक्वेशन के लिए अगर x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 1/2 ही होगी. अगर 1 कुछ भी अगर इसके लिए इसमें अगर आपका कुछ रॉन्ग हो जाता है तो वहाँ पर वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में ध्यान रखना होता है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट in linear equations in two variables have infinitely many solutions. ये तो क्लियर हो गया. ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1. एक्सरसाइज 4.1 is based on this concept that in first question you have to write only the equation. You have to make only equation, not to solve the given condition. Observe the given condition and try to write the only equation that the cost of the notebook is twice the cost of the pen. एक नोटबुक है उस और उसका जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से 2 गुना है. ट्वाइस का मतलब 2 गुना होता है. राइट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. बच्चों इसमें आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लगा के स्टेटमेंट लिखना है, और यहाँ पर जो आपको वेरिएबल मानना है वो भी इसमें बुक में लिखा हुआ है. लेट द कॉस्ट ऑफ
notebook be X rupees and cost of pen to be Y rupees. Then from क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, इसमें इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो साइड कनेक्ट हो एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ इक्वल साइन के, सिंबल ऑफ इक्वल साइन से कनेक्ट हो। तो जैसे देखिए यहाँ पर इक्वल साइन लगाया मैंने, ये x लिख दिया, यहाँ वहाँ y लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोटबुक के कॉस्ट जो है पेन के कॉस्ट का 2 गुना है। तो 2 गुना का मतलब ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स 2 गुना होता है। तो यहाँ पर 2 गुना का मतलब 2 यहाँ लिख देंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू वाई का मतलब 2y होता है, ठीक है। अब इसको हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, 2y को उधर ले आइए, ये हो गया, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 you have to express the following linear equation in the form of ax plus by plus cy plus c is equal to 0 and indicate the values of a b c in each case। बच्चों आपको इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आपको मैंने बताया है कि ax plus by plus c is the जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करना है और उसके बाद कंपेयर करके हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x plus 2y is equal to 2x plus 3y is equal to 9.35, ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम पहले ax plus by के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x plus 3y प्लस माइनस 9.35। तो देखिए x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गया ना। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, यहां लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग this the given equation by ax plus by plus c is equal to 0 we get ax plus by plus c is equal to 0 से हम कंपेयर करेंगे तो a is equal to कितना हो जाएगा बच्चों 2, b is equal to 3 and c is equal to minus 9.35 ऊपर बार लगाए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ बिफोर मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन पास द वीडियो टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी और टेक स्क्रीनशॉट। Now student, we are moving our next question. Question number 2 is x minus y upon 5 minus 10. So first of all you have to make the given linear equation, express the given linear equation as ax plus by plus c is equal to 0. So for this we can write x plus minus y upon 5, or you may write that minus 1 upon 5y plus minus 10 is equal to 0. Okay, now this expressed in the form of x plus by by c is equal to 0. Now comparing given equation by ax plus by plus c is equal to 0, we have a is equal to here बच्चों a, यहाँ पर देखिए कोई कोएफिशिएंट नहीं है x के आगे, तो वहाँ पर जब कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है वहाँ पर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो a is equal to 1 हो जाएगा, b is equal to minus 1 upon 5 and c is equal to minus 10. This is the answer. Okay, now there are in this question there are 8 parts. So 8 part I am solving, that is 5 is equal to 2x. So 5 is equal to 2x means
you have to write this 5 you have may shifted in right hand side, then 2x minus 5 हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह लिख सकते हैं 2x minus 5 इक्वल टू 0। बच्चों इसमें देखिए x का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, y का टर्म नहीं है, तो इसके लिए आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। y का टर्म अगर नहीं है तो हम इसको जीरो भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। देखिए जब कोई टर्म नहीं होता है बच्चों, जब कोई टर्म नहीं होता है किसी कोई वेरिएबल का, तो वहां पर हम उस वेरिएबल को लिख के उसके आगे कोएफिशिएंट 0 लगा देते हैं, तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 0y का मतलब क्या है बच्चों? 0, क्योंकि 0y का मतलब होता है 0 इंटू वाई, और रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो बस आपको सिर्फ एक्सप्रेस करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। ओके, नाउ कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन by ax plus by plus c is equal to 0, we have, then we can write a is equal to 2, b is equal to 0 and c is equal to minus 5. This is the answer. Okay, so I hope you all understand the concept of linear equation into variable very clearly, and solve the remaining question. Try to solve the remaining question before watching all the steps. Okay, and in next video I will discuss the next new question of exercise 4.2. So thank you very much for being with us.